नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever this speaks for Hedi. absolutely, especially for our viewers in Somalia. Yes. Right. So Pradeep ji, the Ambani wedding, of course, is in full swing. They have blocked the whole road. No, I thought only one part of the road, as on today, after going to BKC, the webs on the MC in the morning, they have blocked the entire road. The entire road is theirs now. Now the entire road belongs to the Ambani. Yes, for a few That's days. it. And if you're not part of the wedding, you're a nobody. That's what it means. We have not been invited, so we are nobodies, along with the rest of the country, of course. That's number one. Number two, all the MLAs of various political parties are now housed in various five-star hotels. A very good business for five-star hotels, Pradeep ji. Sir, ये सब क्या हो रहा है? लोग जो कह रहे हैं, getting fed up of seeing all these kind of activities. जी. Some MLAs are feasting in five-star hotels, and every party. It's not isolated to one party. BJP, the Uddhav Thackeray Sena, Eknath Shinde Sena, everybody, they are living a life of luxuries. That's right. And who's या paying for फिर this? आप ही कंप्लेन करो, अनएम्प्लॉयमेंट जनित में ये है, बेरोजगारी है, प्राइस राइस है, गरीब को खाने में थाली में खाना नहीं है, एंड गरीब यही देख रहे, टीवी खोले तो अंबानी के शादी, करोड़ों का ज्वेलरी पहन के नाच रहे हैं सब लोग, और पॉलिटिशियंस के बच्चे भी नाच रहे हैं वहां से। पॉलिटिशियन के बच्चे भी नाच रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और पॉलिटिशियन के बच्चे नाच रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है, नौकरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, आई एग्री विद यू। और आप जो हैं माशाल्लाह, किनके साथ कहाँ पर दिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सबको दिख रहा है। वो अरविंद केजरीवाल यूज्ड टू से दिस, राइट? सब मिले हुए हैं जी, समथिंग टू दैट इफेक्ट। मुझे लग रहा सब मिले हुए हैं साहब। आज की तारीख में भी 240 रुपए की तूर की दाल है प्रदीप जी, और 125 रुपए वाला जो पैकेट मिल रहा है उसके साथ में आपको कंकड़ भी मिलेंगे, मिट्टी भी मिलेगी। वो मतलब वो चुन लीजिए, वो दाल को एक जमाने में चुना करते थे ना घर में बैठ करके, सारे कंकड़ निकाला पड़ता था, हम भी निकालते थे एक एक करके। मतलब ये क्या है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? On the one hand, you are saying unemployment is at its highest, and you are there for the most luxurious, richest wedding in the world, and you are dancing over there. You're dancing in that. You're taking part in it. I can understand all the film stars, everybody, they'll go where the money is. Let's be very clear. As far as all the film stars are concerned, all the models are concerned, all the musicians are concerned, they are part of the entertainment industry. But you guys, you are public representatives. What the hell are you doing there? Well, in any event, चलिए. No, we are always talking about other things that ये जो builders है, contractors है, ये नेता बन गए आजकल। आजकल ये तो कहाँ से आपको गरीब आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा? वो शिकायत लेके किसी के पास जाएंगे? मतलब अगर जिसके खिलाफ शिकायत है उसी वो सत्ते पे बैठा है। सर अगर जो बिल्डर है वही गार्डियन मिनिस्टर है, उसके पास जाकर के आप बोलेंगे कि भाई साहब आपने अच्छा काम नहीं किया, मैं आपकी शिकायत लेकर के आपके पास आया हूं। मतलब we are now living in a Kafkaesque world. Revolution is which is like terrible. What is going on over here? मतलब हो क्या रहा है? हद होती है यार, हद होती है। हम तो 2 दिन पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे जी। People asking for breads, they saying eat cakes. Eat cakes. Why? और केक्स तो ये वेडिंग है, जो वेडिंग है उसमें से केक फेंक रहा, आप खाइए केक खाइए, ब्रेड कहाँ से मिलेगा आपको? केक खाइए। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऊपर से आप क्या वो लाडली बहन स्कीम आप ला रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं। एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, वो जो बहना लाडली बहन स्कीम है, रिकॉर्ड नंबर। लुक एट द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी इन द स्टेट। एवरीबॉडी इज अप्लाइंग। 1500 रुपए के लिए पर मंथ दे आर इन क्यूज एंड दे आर फाइटिंग फॉर एप्लीकेशंस। नाउ दैट इज एक साइड द ग्रिम पॉवर्टी, एंड दूसरी साइड
extravagance, And ugly you- display of extravagance. And you forgot, Pradeep ji, we are now the 5th largest economy in the world, soon to be the 3rd largest economy. As O.V. Vijayan in The Statesman had once come out with a lovely cartoon, there is this little guy who's talking to his dad and he's telling him, Dad, why didn't we go to the land of statistics? Please, can we It go? looks pleasant that at least for brief moment we can live That's luxurious right. life. What is going on over here? Like, I mean, come on, this is absolutely crazy. 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, पावर में आए थे, तब हम सबको बहुत उम्मीदें थी, सबको यही लग रहा था कि यार वास्तविकता में हिंदुस्तान की जो अभी तक एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो असल में अनलीश की जाएगी. We'll have, you know, small enterprises in every garage. There will be God knows how many startups. There will be, there'll be a boom everywhere. I mean, I agree. For 2 years there was COVID, but what has happened? What has happened to Mumbai? What has happened? I mean, every day you yourself know. आज आप advertise कर दीजिए प्रदीप जी कि नेशन नाउ पर लोगों की जरूरत है, यहाँ पर लाइन लग जाएगी 5,000 लोगों की. Yes. I mean, this is what is going on here. The government has to wake up. We have to do something. Let's be very clear. NEET एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स अभी तक परेशान है प्रदीप जी. अग्निवीर को लेकर के लोग परेशान हैं. उसके अलावा हाथरस में जो एपिसोड हुआ उसको लेकर के लोग परेशान हैं. और सबसे वाहियात बात क्या हो रही है कि there are so many accidents taking place all over the place. What is going on here? I personally think that all these new cars which have come in, you know, the Audis and BMWs and Mercedes-Benz and Ferraris and stuff like that, they're all automatic cars. There's only the brake and the accelerator. आप जब टर्न लेते हैं तब भी आप स्लो डाउन नहीं करते हैं. पहले जो मैनुअल आपकी गाड़ी होती थी उसके अंदर यू न्यू कि आप जितना मर्जी एक्सीलरेटर दबा दीजिए, जब तक आप गियर चेंज नहीं करेंगे गाड़ी भागेगी नहीं. यहां पर तो ऑटोमेटिक में साहब हवा से बातें करती है गाड़ी. And as a result of which, what happens? It goes out of control. Every second day, we are hearing and reading about the worst accidents taking place all over the place. What is going on here? I mean, there has to be a return of sanity somewhere. Somewhere, there has to be return of sanity. I mean, this is rather sad. What is happening is absolutely Hit and run cases are actually बहुत जबरदस्त तरीके से फैल गया है. इनके एपिडेमिक ऑफ हिट एंड रन केसेस. दुरुस्त बात. कल नागपुर में हुआ था. Before that, some cops were knocked down in Pune. You had a few incidences in Sir, अभी वो 18 लोग मर गए उधर उत्तर प्रदेश. Yes. Again road accident. मतलब और कश्मीर में एक बार फिर, especially in and around the area of Kathua and Rajouri and places like that, जो बॉर्डर के साथ सटके जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर एक बार फिर आतंकवादी आ गए. और वो विंटर के पहले again that same pattern has started, that before the onset of winter these people are starting to attack again and again and again. Something has to be done. Let's ask our friend Ganesh Khankar साहब. गणेश खानकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के. गणेश खानकर साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. जय सिया राम, हर हर महादेव. तो गणेश खानकर साहब, जय श्री राम, हर हर महादेव. मोदी जी गए मॉस्को में, पूरे यूरोप में खलबली मच गई, तिल मिला गए लोग. यूएसए के लोग भी कहने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है. ये भूल जाते हैं लोग बहुत कन्वीनियंटली कि यूरोप इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया इज स्टिल बाइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ गैस, कोल एंड एनर्जी एंड ऑयल फ्रॉम द रशियंस. मतलब आप करें तो ठीक ठाक है, हम करें तो गड़बड़ है. मतलब हिंदुस्तान ने एक तरीके से मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है पूरी दुनिया को कि जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सोचते हैं और किसी की नहीं. गणेश खानकर जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, ये दुनिया में जो राजनीति चलती है वो गिव एंड टेक पॉलिसी पर चलती है. या दुनिया के विश्व के राजनीति में कोई किसी का बेमतलब दोस्त नहीं होता है. और मुझे लगता है कि हमने इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 जब अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था बांग्लादेश के समय, जो लड़ाई चल रही थी उस समय रशिया हमारे साथ में खड़ा रहा था. जी.
याद कीजिए उस समय यदि रशिया हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो उस युद्ध का परिणाम क्या होता। बीच के दिनों में जब दुनिया दो खेमों में बटी थी और अभी जो अमेरिका आतंकवाद के बारे में सोचती है, जब उसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं, तब अमेरिका ये सोचती है। लेकिन याद कीजिए कुछ सालों पहले अमेरिका की आतंकवाद के बारे में क्या भूमिका थी और वो क्या सोच रहे थे, ये हम भली भांति जानते हैं। जी उस समय वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़े थे, हर साल वो पाकिस्तान को मदद देते थे। बावजूद उस समय रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। हमारी Something seems to be wrong. We seem to have lost. We seem to have lost Mr. Ganesh Khankar. Can we please try him again? Please. Now you It go. is absolutely true. The USS Enterprise and the Russian Seventh Fleet had decided to move towards the Bay of Bengal. Absolutely true. And it is only the presence of two Russian nuclear submarines in the Indian Ocean and in the Bay of Bengal that deterred the Americans and woke them up to the reality that, hey, listen, you can't bully the Indians. All right? Exactly. So on that, I agree totally with Mr. Modi that he has gone to Russia. He has gone and he has hugged Vladimir Putin just to send a message across to the rest of Europe that, hey, listen, we are not here to listen to you. We are here to work for India. But today, in fact, Ajit Doval and the foreign minister of China, they had a huge talk among themselves, and the foreign minister said that we have to work towards, and both of them talk about how to work closer together where bilaterals are concerned, and the border issue will be a part of the bilateral talks. तो And देखिए we will यहाँ try and पर find solutions. यहाँ पर मैं मोदी Border गवर्नमेंट से states. मोदी सरकार से सहमत हूँ जहाँ तक चाइना का सवाल है। चाइना के साथ आप, हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि चाइना के साथ आप खुलेआम लोहा ले सकें। आप चाइना पर अटैक नहीं कर सकते, चाइना के साथ आप जंग नहीं लड़ सकते, unless of course the Chinese decide to attack us, then it's a different thing. Trade relations with China have really gone up. The trade with China is now worth almost $1 trillion every year. So we really are at the moment at a stage where we say, all right, fine, we'll discuss the border issue, we'll work out solutions as far as the border issue is concerned, but let it not affect trade. I think that that's a safe, rational, and shall I put it this way, very selfish and patriotic way of resolving issues with China. I think And in that's fact, good enough. they're, I think, reconciling to the fact that war is no. Even Modi says, "Jang koi sulah nahi hai." There's some Ji. jang is not a solution. That's right. I mean, he's been continuously telling it. And today, Doval and Foreign Minister China, Mr. Wang Yi's interaction was very laudable. I mean, people saw it first time. They're talking so pleasantries, exchanging pleasantries in such a way, and saying that every dispute has to be solved amicably. And the border disputes is a part of a bilateral relationship. That's And we're right. going to discuss them. And so, if Ji. you want to find out a way that shows India is moving ahead with China, and probably जो एक triad इधर बन रहा है कि China, Russia and India, if this axis works out, it could be an unbeatable axis. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, let's ask Mr. Ganesh Khankar. Ganesh Khankar साहब, I think we've got you back. गणेश खानकर साहब, आपको आवाज आ रही है? I was just told he's back. Doesn't seem to be back. He can't hear me. चला लो भी। गणेश खानकर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? Yes, he's back. बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपको मैं देख पा रहा हूँ, आपको सुन भी पा रहा हूँ। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि आज अजीत डोभाल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी भी आज बातचीत हुई है, तो मतलब अगर वो रशिया चाइना इंडिया एक्सेस अगर बन गया बहुत अच्छे तरीके से, तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनती है सर, सबसे बड़ी मार्केट बनती है पूरी दुनिया की, अगर आज ये एक्सेस बहुत अच्छी तरीके से बन जाए तो। गणेश खानकर साहब प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना और भारत ही तो है जी, दुनिया की लगभग आधी आबादी यहीं पर बसती है, दुरुस्त बात। और मुझे लगता है कि सारा जो मार्केट है वो यहीं पर है, और यदि समझो रशिया इसमें ज्वाइन होता है तो बड़ा उलटफेर दुनिया की इकोनॉमी में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी बातें आज जो हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम अपने हितों को न भूलें, क्योंकि चीन की जो मंशा है वो पूरी तरह से कभी व्यापार की नहीं रही है,
वे व्यापार के बहाने उन देशों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद फिर उस देश की राजनीति अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ड्रैगन कभी शांत नहीं बैठता है। ड्रैगन की महत्वाकांक्षा बड़ी खतरनाक है, इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध नहीं युद्ध, युद्ध नहीं बुद्ध, मोदी जी का संदेश। इस देश ने पूरे दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो आप युद्ध ना करके बुद्ध को याद करें। मोदी जी जिस प्रकार से कहा वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, खानकर साहब, और जिस प्रकार से डोवल साहब और फॉरेन मिनिस्टर वांग यूई दोनों साथ मिलकर इंटरेक्शंस किए, बायलैटरल्स में बॉर्डर इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। क्या ये आगे जाके हम लोग देख रहे हैं कि एक एक्सिस बन रहे इंडो चाइना और रशिया, और अगर बनता है तो एक ग्लोबल, एक जबरदस्त तरीके से एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनन होगा इस देश के लिए, भारत देश के लिए। खानकर साहब, नहीं देखिए, दुनिया में व्यापारी रिश्ते बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद कीजिए कि हमने ये बात इसलिए कही कि भारत की दुनिया में प्रतिमा क्या है यह स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने जाए, इसलिए हमने कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। देखिए नंबियार जी, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप यदि संसद के अधिवेशन की तरफ यदि आप चले जाएंगे तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उन्होंने जो बातें संसद में कही, ठीक है आजकल मीडिया को वो भी अच्छा लगता है, शायद आप भी उनकी तारीफ करते होंगे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को पूरी तरह से हिंसा करने वाला कहा। अब वो किस कंसेप्ट में कहा मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए जो कुछ अपने भारत का योगदान है या प्राचीन देश का योगदान है, उसे भी हमने नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने यदि ये कहा होगा कि हमने युद्ध नहीं दे दुनिया को बुद्ध दिया है, तो गौतम बुद्ध जी ने हमेशा शांति का संदेश दिया हुआ है, इसलिए हमने उनका उल्लेख किया। लेकिन हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी संरक्षण सिद्धता, इसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मणिपुर में मोदी साहब ने कहा कि 11,000 एफआईआर have been filed, 11,000 एफआईआर फाइल किए, 500 लोग को अरेस्ट किए, और उन्हें आगे जाके कहा कि मणिपुर पीस के लिए लगातार होम मिनिस्टर और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का मगर फिर भी कहना है कि देखो मोहब्बत, सम्मान, भाईचारा, यही 3 चीज से आप मणिपुर के सोल्यूशन ला सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। प्यार और मोहब्बत, जो बार बार राहुल गांधी जी कहे कि हर गली, हर शहर, हर गांव में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान, तो ये मोहब्बत से ही मणिपुर का हल होगा, राहुल गांधी जी का कहना है। गणेश जी। हाँ नंबियार जी, राहुल गांधी अब देश के नेता प्रतिपक्ष है, तो प्यार अब और मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोल के रखी है, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। वो किस प्यार की तलाश में है, वो अभी तक उम्र की 55 साल तक हम समझ नहीं पाए हैं। आप शायद समझ पाए होंगे, तो आपका मैं अभिनंदन करूंगा, राजीव जी का और आपका। अब रही बात ये प्यार और मोहब्बत की दुकान जिसकी बात वो हमेशा करते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा, शायद इस टेलीकास्ट को कांग्रेस के नेता देखते होंगे, तो ये कश्मीर की बॉर्डर पर जाकर जो पाकिस्तान से रोज आतंकवादी आते हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में कोहराम मचाना है, जिन्हें भारत में अशांति पैदा करनी है, उनके सामने आप जाकर कहिए कि मैं प्यार और मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ। देखिए ये बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी है। राजीव जी और नबियार जी, आप पत्रकार शायद हम पर टीका कर सकते हैं कि देश कुछ अलग स्थिति में जा रहा है, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि 2014 के पहले इस देश में रोज सवेरे और शाम केवल और केवल करप्शन पर चर्चा होती थी। कभी 2G, 3G, कोयला जी, कभी फिर जीजा जी भी बीच में आते थे। अब 10 सालों में हमने हमारा कंसेप्ट बदल दिया है। अब इस देश में विकास पर चर्चा होती है, जीडीपी पर चर्चा होती है, बाहरी देशों में हमारी क्या अब कीमत है, इस पर चर्चा होती है। स्वाभाविक रूप से 10 साल सत्ता के बाहर रहने के बाद जिस तरह से एक व्यक्ति को अब इस देश में टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल राजीव जी, यदि आप 1996 को याद करेंगे तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की ट्रीटमेंट मिलती थी, मानो जैसे हम
कोई अस्पृश्य व्यक्ति है, कई दूसरे ग्रह से हम आए, इस तरह का बर्ताव संसद में और पूरे देश में हमारे साथ हो रहा था कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस वाले हैं, इनकी मानसिकता क्या है। राजीव जी, आप जो चाहे सोचिए, लेकिन गए 10 सालों में इस देश में जो परिवर्तन आया है, इस देश से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, देश की सीमाओं के भाग में जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं, और गलवान घाटी में हमने जिस तरह से चीन को जवाब दिया है, वो आपके सामने है। अब देखिए, हर बात को यानी प्यार और मोहब्बत की दुकान जरूर उन्होंने खोलना चाहिए। मैं आज भी, मुझे एक बात से बड़ा अचरज है, उन्होंने कश्मीर में उनकी यात्रा के दौरान जो भाषण दिया था, इस आतंकवादी ने मेरी आंख में देखा और आतंकवादी की आंख में मैंने देखा। अब मुझे पता नहीं ये प्यार और मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने उस आतंकवादी को दी होगी, उसने आत्मसमर्पण किया होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन पता नहीं प्यार और मोहब्बत की दुकान कश्मीर में क्यों नहीं चल पाई। लेकिन सर ये तो बता दें अभी, वो गणेश उनका काम खानकर जी, करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। गणेश खानकर जी ये तो अभी बता दें कि ये सडनली एकदम, क्योंकि पिछले 3 के 4 साल से ये बंद था, 5 साल से एक्चुअली, 4.5 साल से एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं और हमारी फौज को बार बार टारगेट किया जा रहा है एक बार फिर। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है। गणेश खानकर, मैंने बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल ये करेंगे क्योंकि आतंकवादियों को सीधा फंडिंग अब बंद हो रहा है। सीधा फंडिंग बंद होने के कारण अब उनकी जो मुश्किल है वो आपको पता है, पाकिस्तान की अभी की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की फौज आईएसआई को कितना फंडिंग करती होगी। साथ में ये बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, याद कीजिए कि जिस तरह से कश्मीर में अब टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से कश्मीर के नौजवानों के बीच में अब विकास की ललक लग पड़ी है, वह भी सोचता है कि हाँ, मैं इस देश की डेवलपमेंट में मेरा भी कोई हिस्सा हो। अब कश्मीर में गेम्स होने जा रहे हैं, कश्मीर में नए नए मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आना शुरू होने के बाद में कि कश्मीर अब उसी स्थिति में है, यह दर्शाने की ये आखिरी कोशिश है, ऐसा मैं मानता हूं सर, आखिरी कोशिश। खानकर आतंकवादी यदि सक्षम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने जो बात कही ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये छुप छुप के इस तरह के वार करने का उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप याद कीजिए, इसके पहले वो किस तरह की गतिविधियां करते थे और अभी वो किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। ये छुटपुट घटनाएं होगी, हमारे पुलिस कर्मियों पर हमले होंगे, उनके परिवारों पर हमला किया जाएगा, हमारे मिलिट्री फोर्सेस पर चुपकर वार किया जाएगा। अब ये मैंने कहा, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आखिरी कोशिश है। इस साल सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, टूरिज्म हुआ सर आई अंडरस्टैंड, कश्मीर में सर आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं वो सारी दुनिया समझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, अब इसके बारे में आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आपकी मीटिंग होगी, जहां मर्जी होगी, इस सवाल को आप जरूर रेज करेंगे। सर ये देखा गया है कि जब भी आतंकवादी हमला हुआ है, स्पेशली जम्मू के इलाके में, पूंछ के इलाके में, राजौरी के इलाके में, कठुआ के इलाके में, वो तभी हुआ है जब मूवमेंट होती है ट्रूप्स की। ट्रूप्स के जो ट्रांसपोर्ट कैरेजेस हैं उनके ऊपर हमला होता है, हमेशा ये देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ वीक लिंक समवेयर, कहीं पर कोई वीक लिंक है, मतलब कि आवर ट्रांसपोर्ट्स आर नॉट सेफ। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट सर। उसके बारे में, उस विषय के बारे में हम लोगों को बहुत गहरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारे ट्रुप्स की जो मूवमेंट है, जो ट्रक्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो बुलेट प्रूफ ट्रक्स हैं या नहीं हैं, क्या वो आर्मर्ड ट्रक्स हैं या नहीं हैं, व्हाई आर दे ट्रैवलिंग इन ऑर्डिनरी ट्रक्स। दिस इज समथिंग दैट वी रियली एंड ट्रूली हैव टू लुक एट। इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा सर। अब आप बोलें गणेश खानकर साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है राजीव जी, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लीकेज है, बिना लीकेज के ये होगा नहीं। लेकिन जो मैंने खबरें पढ़ी उसके बाद जो मेरे ध्यान में आया कि वहां पर जो ट्रूप्स पर हमले हुए हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल जिसे नैरो माइंडेड, नैरो
रोड गेज के हम रास्ते कह जी। सकते हैं या कर्व या टर्निंग पॉइंट होते हैं, वहां पर उन्होंने ये हमले चुपके से किए हैं। मैं जब कश्मीर में गया था, ये आज के 10-12 साल पहले की बात है राजीव जी, यानी मैं वहां पर देख रहा था, श्रीनगर जाते समय रास्ते पर रुकते रुकते हर 1 मिनट के बाद एक मिलिट्री का कॉन्वॉय वहां से कश्मीर की तरफ जाता है और दूसरा कॉन्वॉय कश्मीर से जम्मू की तरफ आता है। यानी इतना ट्रांसपोर्ट वहां पर बढ़ते रहता है। कुछ सैनिक हमारे वहां जाते हैं और वहां से कुछ सैनिक जम्मू की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये बिल्कुल 1-2 मिनट की मतलब गैप के भीतर हमारे कॉन्वॉय चलते रहते हैं। हर कॉन्वॉय के आगे एक सेफ्टी वैन होती है जो पेट्रोलिंग करती रहती है। हर कॉन्वॉय में ऊपर जवान निगरानी करते रहता है। लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारे कॉन्वॉय की जो मूवमेंट है उसकी कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है और जमीन पर आज हमारे कॉन्वॉय की जो मूवमेंट है वो सेफ नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है सर। दुरुस्त बात है, and the only thing is over there, by the way, because if you provide armored trucks for everybody and so on and so forth, the expenditure will be too great. I understand. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सर्वेलेंस नेटवर्क है, सैटेलाइट सर्वेलेंस जो है, बाकी सब चीजें जो है ऑन ग्राउंड जिसको ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड सो फार अप टिल नाउ दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, आई एडमिट। these are aberrations. I hope we are able to conquer them. Pradeep ji, please. जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया, कांग्रेस और जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि देखो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी और जो कोविड लॉकडाउन अनप्लान तरीके से हुआ, अनप्लान तरीके से हो गया, दैट इज डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी। उनका एस्टिमेट है कि 54 लाख जॉब्स द कंट्री हैज लॉस्ट इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जब एमएसएमईज और छोटे उद्योग में 54 लाख नौकरी चला गया है, कांग्रेस का आरोप है। तो अनप्लान्ड कोविड लॉकडाउन भी इसको दोषी मानते हैं कि मोदी साहब ने वो भी अनप्लान्ड तरीके से किया, अपार्ट फ्रॉम जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन। तो हाउ डू द बीजेपी सी दिस एक्यूजेशन? आप बीजेपी इस एक्यूजेशन किस प्रकार से देखते हैं खानकर साहब? नंबियार जी, जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि कोविड के समय सबसे ज्यादा मौतें कहीं होगी तो वो भारत में होगी, सबसे ज्यादा यदि इकोनॉमिक डिप्रेशन कहीं होगा तो वो भारत में होगा। अब याद कीजिए नंबियार जी, हमारी जीडीपी आज 7% के आसपास और उसके ऊपर जा रही है। अब ये हुई, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जब पूरी दुनिया में जर्मनी से लेके यूएस से लेके यूके, यानी जो स्थितियां आपके सामने, जो आंकड़े आपके सामने आएंगे, तो हम बड़ी गंभीर स्थिति में आज इस समय चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी आज एक बड़ी सशक्त रूप से पूरी दुनिया में उभर रही है। शायद जयराम रमेश इस बात को कितना समझ पाए मुझे पता नहीं है। रही बात कोविड की, तो कोविड के समय हमने पूरी दुनिया की मदद की, हमने पूरी दुनिया की मदद की। और मेरा एक ही सवाल आज कांग्रेस के सारे जो नेता ये बात कहते हैं, उसमें अखिलेश यादव से, राहुल गांधी जी से, इवन अप टू जयराम रमेश, याद कीजिए उनके स्टेटमेंट जब कोविड की जिसे हम लस कह सकते हैं, उस समय इनके क्या स्टेटमेंट थे। याद कीजिए क्या नेता कहते थे, हम नहीं लेंगे, ये तो बीजेपी की है, ये संघ परिवार की है, ये मोदी जी की है। अब उसके बाद में इतने सारे लोग बचे, क्या ये एफिडेविट पर लिख के देंगे कि इन्होंने उस समय नहीं लिया कोविड का इंजेक्शन? क्या ये लिख के देंगे? लेकिन उनका ये कहना है कि हमने ये कहा था उस वक्त, और आज मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, उनके प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि अब एस्ट्राजेनेका ने इंग्लैंड में, यूके में एडमिट किया है कि उनके वैक्सीन की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर प्रॉब्लम्स, ये साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है सर। प्लीज सर। देखिए राजीव जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी बीमारी जो चीन से पूरी दुनिया में फैली, जिसके बारे में उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये कैसे होता है, इसके बारे में आज भी कोई ठोस कोई कह नहीं सकता है। सारी बातें अंदाजों के ऊपर है। कभी कहते हैं कि इस मार्केट से वो फैला, फिर इस महिला के कारण फैला,
कोई ये कहता है कि ये लैब से लीकेज के होने के कारण हुआ है। आज तक कोई भी ये कह नहीं पाया कि कोविड कहां से प्रारंभ हुआ, जबकि उसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने भुगते हैं। अब उस समय भी शुरुआत में आपको याद हो कि कुछ लोगों ने मलेरिया के टैबलेट्स लिए उस समय, कि कहा कि भाई ये दिस इज टाइप ऑफ अ मलेरिया। फिर कुछ समय लोगों ने काढ़ा पीना प्रारंभ किया कि भाई शरीर में अपनी जो हीट होने के कारण जो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, शायद उन्हें मारने के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने अपने धर्मों से उसके साथ जोड़ा कि भाई ये हमारे खान पान की जो आदत है उसके कारण हमें कभी कोविड नहीं होगा। उन्होंने तो मास्क लगाने से मना कर दिया था। याद कीजिए, ऐसे पीरियड में 3 से 4 महीने के भीतर एक नए कोविड के वैक्सीनेशन को रिसर्च करना, उसको जन्म देना, जी उसको सेफली करने के बाद में लोगों तक उसे पहुंचाना, और राजीव जी जाने बच गई। हमारी भी तो जाने बच गई ना साहब, हमने भी तो 2-2 वैक्सीन लिए हैं। अब ये मैं यानी जो मैं खुद के बारे में आपसे कहता हूँ, मैं कोविड के समय 7 हिल्स में एडमिट था राजीव जी, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे कोविड के समय लोगों के बीच में था। अब मुझे पता नहीं है कहाँ से इन्फेक्शन हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन जिस दिन मुझे थोड़ी सी आशंका हुई और मैंने चेक कराया तो बड़ी मात्रा में मेरे ब्लड में क्लॉटिंग हो चुका था। अब हॉस्पिटल में भी मुझे बड़ी देर से छोड़ा गया, और जब मैंने पूछा कि भाई मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाकर ये कहा कि आपके ब्लड में हेवी क्लॉटिंग हो चुका था, आपकी जान को खतरा हो सकता था। उसके बाद में वैक्सीन लिए मैंने, कुछ दवाइयां मेरी आज भी शुरू है, मैं कर रहा हूं। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं था। उस समय जो वैक्सीन आई उससे ये तो मैं मानता हूं कि हाँ, दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बच गई। इस देश में 140 करोड़ जनता में से 80, 90, 100 करोड़ जनता ने जो उम्र के ऊपर के जिन्होंने वैक्सीन ली, उनकी जानें बचने का काम हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है सर, और सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो भारत की जो वैक्सीन बनी, इंडिजिनस वैक्सीन जो हमारी, वो एस्ट्राजेनेका जो है, जिसकी अभी भी मैंने बात करी, वो तो ऑक्सफोर्ड के साथ थी ना कोलैबोरेशन में। जो हमारे भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई, इवन नाउ द होल वर्ल्ड हैज नाउ एक्नॉलेज्ड कि सबसे बढ़िया मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन वो कोवैक्सीन है जो भारत में बनी, हैदराबाद में, भारत बायोटेक की। अब आप बोलें सर। मेरा आपसे कहना इतना ही था कि अब ये उस समय जो जाने बच गई, अब उसके बाद में लोग भूखे मरेंगे, ये बातें कही जा रही थी। हमने सारे लोगों के लिए राशन खोल दिए, हमने ई श्रम के लोगों को गैस सिलेंडर दिए, हमने बहनों के अकाउंट में 500 रुपए के रूप में पहली मात्रा जमा की, हमने किसानों के खाते में पैसे जमा किए। राजीव जी, ये सारा के सारा जब हुआ, उस समय ना तो आपकी जो इकोनॉमी है उसको कई इफेक्ट हुआ, ना ही आपको पूरी दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि सुब्रमण्यम अपने जयराम रमेश जी या फिर पी चिदम्बरम जी या हमारे प्यार मोहब्बत की दुकान के होलसेलर राहुल गांधी जी को ये समझ में नहीं आता होगा, तो इस देश का आरएसएस आपने बोला, आरएसएस, हाँ उनका कहना यस, आरएसएस इज अ प्रॉब्लम। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपर हाउस में, राज्यसभा में हंगामा कर दिया, बोले आरएसएस हैज टेकन ओवर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। अब जितने भी एजुकेशन सिस्टम के टॉप लेवल पे देखो, आरएसएस के लोग वहां पर प्रभावी हो चुके हैं, इफेक्ट हो, कंट्रोल कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आरएसएस मनुवादी विचारों को स्प्रेड करना चाहता है। अपने यंग जनरेशन है, अपने स्कूल है, अपने एजुकेशन है, अपने हिस्ट्री में मनुवादी विचारधारा का जिस प्रकार से इन्फ्लक्स करना चाहता है, वो काम चालू है। और आरएसएस एक जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस करने में ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है बाय टेकिंग ओवर द एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत सीरियस चार्ज है खनकर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, दैट आरएसएस इज इन्फिल्ट्रेटिंग द एजुकेशन सिस्टम। ऐसा है नंबियार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने कर्तृत्व के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वे मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैंने इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उनकी एक ही एक क्वालिफिकेशन है कि वो हद से ज्यादा गांधी फैमिली के वफादार है।
उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष बनने की। अब वो यदि ये बात कहते हैं तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो इतिहास गुलामी की मानसिकता का था। हमारे देश में अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ाया गया, जबकि हमारे इतिहास को हमें कभी भी सही रूप से पढ़ाया नहीं गया। यदि आने वाले वर्षों के इतिहास में राम मंदिर फिर से खड़ा हो गया ये बताने की कोशिश होगी तो इसमें गलत क्या है। हमारे इतिहास में तक्षशिला और नालंदा के ये हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ये यदि हम विस्तृत से बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हमारी गलती क्या है? क्या तक्षशिला और नालंदा के बारे में सिर्फ एक पन्ने में पढ़ाया जाएगा? हमें एक पन्ने में? ये वही कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री जी ने राम सेतु को काल्पनिक कथा कहा था, आज राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मतलब मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहना चाहते हैं वो कहे। मैं एक सिर्फ सवाल पूछूंगा, कभी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से ये नंबियार जी आप पूछे, मेरी आपसे विनती है। याद कीजिए जब पहली बार पाकिस्तान का उल्लेख हुआ था तो उस मीटिंग से जिन्ना ने वॉकआउट किया था। ये क्या स्टूपिड बातें चल रही है। वही जिन्ना वर्षों से जब इंग्लैंड से लौट कर आए तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए, और जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण किया उसी मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर राहुल गांधी वायनाड से सांसद होकर दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठते हैं। सर वो कहते हैं ये मुस्लिम लीग अलग है। कौन सी मुस्लिम लीग अलग है? ये वाली मुस्लिम लीग अलग है, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। ये 1947 के बाद बनी है एंड दे बिलीव टोटली इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। माय क्वेश्चन, कभी संसद में इस बात पर बहस करे कि 1947 में जिस विभाजन की बात हम बार बार करते हैं, जिसके परिणाम राजीव जी आपके पुरखों ने भुगते हैं, कि क्या वो विभाजन प्यार मोहब्बत की दुकान से हुआ था? क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों तैयार हुआ? क्यों पाकिस्तान करेंगे? क्या हमारी बॉर्डर पर जहां रोज भारत माता के नारे दिए जाते वहां जाकर प्यार मोहब्बत की दुकान कहेंगे और ये कहेंगे कि ये कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, मैं यहां प्यार मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं? राजीव जी, इज दैट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? सर वहां के अभी की जो मुस्लिम लीग है, वहां के इब्राहिम सुलेमान सेठ, जीएम बनातवाला, ये सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और सब ने भारत के संविधान की शपथ ली है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज करी है एज एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, और केरल में कांग्रेस का पार्टनर है अलायंस में। जी हैं सर तो या तो उनको बैन करिए। गणेश खानकर साहब, मैं आपकी बात से मैंने आपकी बात मैंने मांग ली, बैन कीजिए। सवाल किया। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, देखिए सर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग बैन अगेंस्ट एनी पार्टी। जी, मेरा विषय ये भारत है, इसमें हर कोई किसी को फिर आप कहेंगे संविधान खतरे में है। जिन्होंने संविधान पूरा क्या कहे राजीव जी, मेरा यह कहना है कि कभी राहुल गांधी जी संसद में यह बात कहे ना, संसद में इस पर बहस करे तो सब सामने आ जाएगा। ये प्यार मोहब्बत की दुकान की कहां खुलती है? वो आज की बात कर रहे हैं सर। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने 10 साल के शासन के बारे में बात नहीं करती है, वो सीधा 1947 में जाती है, 1930 में जाती है, वो पिछले 10 साल की बात नहीं करती। राजीव जी, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है वो प्रजातियां, खत्म हो जाते हैं वे देश, खत्म हो जाते हैं वो समाज जो अपने इतिहास को भूलता है। इतिहास में जिया नहीं जाता है, जिया जाता है वर्तमान में, आशाएं लगाई जाती है भविष्य से, लेकिन सीखा जाता है इतिहास से, और हम इतिहास से सीख कर आगे चलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं वो उन्हें मुबारक हो सकता है। तो चलते चलते सर ये भी बता दें, आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जरंगे पाटिल साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करी है आज फिर दोबारा। उसके पहले लक्ष्मण हाके जी वो आ गए, उन्होंने कहा कि साहब ओबीसी के लिए
ओबीसी को अगर कुछ अन्याय होगा मैं फिर दोबारा बैठ जाऊंगा अनशन पर। तो ये क्या हो रहा है सर, एक बार फिर ओबीसी वर्सेस मराठा फिर दोबारा चालू हो और गया। जरांगे पाटिल जी ने, मनोज जरांगे पाटिल ने धमकी दी है, बोला 13 तारीख को मैं तय करूंगा 288 सीट्स में पाडायचं की उभा करायचं ते मी डिसिजन घेणार। कानकर साहब खुलेआम चॅलेंज है, 280 सीट्स में जरांगे पाटिल तय करेंगे उभा करायचं की पाडायचं। नंबियार जी, मैं भी मराठा हूं, 96 कुड़ी मराठा हूं मैं भी। हमारे पुरखों ने भी लड़ाई लड़ी है जी। मेरी दादी शिवनेरी किले के नजदीक के गांव की है साहब, मेरे पिताजी की माँ, तो हम वहां से संबंध रखते हैं साहब। अब जरांगे पाटिल अपने आप को जो समझते होंगे, वो भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन बात ये कब रुकेगी मैं आपको बताता हूं। राजीव जी, मेरी भविष्यवाणियां कभी कभी आप रिकॉर्ड करके रखते हैं, मेरी ये भी भविष्यवाणी आप रिकॉर्ड करके रखिए। जिस दिन सुप्रिया सुळे जी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनेगी उस दिन ये सारा रुकेगा। ये सारा के सारा शरद पवार का किया कराया है। क्या आप इस बात को लिख के रखिए। ये जो सारा बवंडर 2019 से चल रहा है जी, जब उद्धव ठाकरे जी को पूरे 1 महीने हमारे सामने खिलाकर अंदर पीछे से वो दिल्ली में जाकर बैठकें कर रहे थे, जो बातें अजित पवार ने कही, ये 2019 में भी शरद पवार जी ने इसका प्रयास किया होगा कि क्या सुप्रिया सुळे को मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूं। जो आज अजित पवार बाहर निकले हैं, वो केवल अजित पवार का बाहर निकलना, राष्ट्रवादी की टूट, ये जो आपको दिख रही है, ये विषय उतने तक सीमित नहीं है। ये विषय बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक। पूरा के पूरा परिवार एक साथ आकर अजित पवार जी के खिलाफ खड़ा होना, ये बहुत उतनी आसान बातें नहीं है। दूसरी ओर आप उद्धव ठाकरे जी भले आज ये कहते होंगे, मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि विधान परिषद के चुनाव के बाद जो जिस इंडिया आघाड़ी की आप बात कर रहे हो, वो टूट की कगार पर होगी। मैं आज आपको बता रहा हूं। और ये महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते हैं, कभी शरद पवार सामने नहीं आते, ना आज तक आए हैं, ना भविष्य में अब जितने थोड़े दिन बचे हो नहीं आएंगे। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षमा करे। लेकिन ये सारी राजनीति उनकी जो चल रही है, वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चल रही है। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1982 में अण्णा साहब पाटिल ने, जब शरद पवार राजनीति के पूरे उफान पर थे, अपने आप को गोली मार ली उन्होंने, क्योंकि उनके ध्यान में आया कि मराठों की राजनीति में उनके साथ विश्वासघात किया गया है। शालिनीताई पाटिल, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहते हुए मराठों की राजनीति की बात की, उनको शरद पवार ने पार्टी से बाहर किया। उनके सातारा कोरेगांव की सीट से उन्हें परास्त करके वहां शशिकांत शिंदे को एमएलए बनाया। यह शरद पवार जी का इतिहास है, ये इतिहास है उनका। वे अपने रहते, जब याद कीजिए, जब ये आरक्षण की प्रतिशत 27% पर थी, जब 37% पर थी, जब हम 50% पर आए, तब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन था? किसके पार्टी की सरकार थी? कौन था सत्ता में? उसे कंट्रोल कौन कर रहा था? क्या शरद पवार उस समय मराठों को 10% आरक्षण नहीं दे सकते थे? उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वे केवल और केवल सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। वो आपके साथ आएंगे या तो आपके खिलाफ जाएंगे, लेकिन सत्ता के साथ रहने का उन्हें अनुभव है और वे रहते हैं। वो इस बार कर नहीं पा रहे, ये बात अलग है। लेकिन मेरी बात को आज आप लिख के रखिए राजीव जी। लिखने की जरूरत क्या, रिकॉर्ड हो गया सर। सर रिकॉर्ड हो गया है। जिस दिन सुप्रिया सुळे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनेगी, आपको शरद पवार जी का दूसरा रूप दिखेगा। ये सारी राजनीति वो कहने का मतलब ये हुआ, एक और चीज जो गणेश खानकर जी बोल नहीं रहे हैं कि सुप्रिया सुळे जी भारतीय जनता पार्टी की मदद से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनेंगी, वो असल में बोल नहीं रहे हैं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब शरद पवार जी के साथ जाने का राजीव जी कोई संबंध नहीं है। ना तो ये उनकी सरकार बनने जा रही है और ना ही शरद पवार जी अपने जीते जी शायद सुप्रिया सुळे जी को मुख्यमंत्री बनते देख पाएंगे। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं। देखिए, राजनीति में ये जो घड़ी चलती है राजीव जी, ये घड़ी घूमकर फिर से वही आती है।
इतने साल के राजनीति के बाद आप ना तो महाराष्ट्र के किसान को सुखी कर पाए, ना महाराष्ट्र को सूखे में से बाहर ले आए, ना ही आप महाराष्ट्र के मराठा को आप कहीं सेट कर पाए। आपने केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से उनका उपयोग किया। रोहित पवार जी की बात हम करेंगे। उन्होंने उस दिन बात निकाली गुजरात के बारे में, कहते हैं, याद कीजिए अदानी जी मिलने गए थे तो उनके ड्राइविंग सीट पर उनके बगल में रोहित पवार ही बैठे थे जी। ऐसा कौन सा चमत्कार था ये? अब शरद पवार जी अपने जीवन की पूरी राजनीति करते रहे, जिस पूना शहर से तो शारदा जी से लेके सारे लोग जो उनके साथ अगल बगल में ये ज्वेलर्स वाले, अभी मैं नाम नहीं लेता, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, ये सारे भाई कौन थे? क्या रोहित पवार जी भूल गए? क्या शरद पवार जी को याद नहीं है? या मुंबई में जिन्होंने स्पेक्ट्रम सेल बेचने के लिए इतनी बड़ी राजनीति की, शाहिद पलवा, क्या वो मराठी थी? क्या शरद पवार जी के साथ बगल में बैठा करते थे, क्या वो मराठी थे? क्या रोहित पवार जी भूल गए? यानी ऐसा है राजीव जी, ये घड़ी वहीं पर आती है। आज तक शरद पवार जी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में सत्ता नहीं ले पाए तो नहीं ला पाए। 1978 में उन्होंने दूसरे पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। वे फिर से 1987 में कांग्रेस में चले गए तो रेडी। तो आपके मुताबिक अब ये चलने वाला नहीं है? आपके मुताबिक साहब ऐसा है कि एक बार ये पीक पर जाने के बाद उनको जो शरद पवार जी को करना था वो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कर दिया। जिस तरह से आज जरांगे पाटिल ये कह रहे हैं, देखिए राजनीति में ज्यादा से ज्यादा राजीव जी हम परास्त होंगे, ये हो सकता है कि किसी के बहाने से जरांगे पाटिल ये करना चाहते होंगे, वो अपने आप को नेता स्थापित करना चाहते होंगे, वो जरूर करें, ये बावजूद इसके मैं भी मराठा हूं। अब जिस तरह की वो राजनीति करना चाहते हैं, जिस आरक्षण में बिठाना चाहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसे आपको प्रूव किया जाएगा, उसके लिए आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू प्रूव मराठा ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह चुके हैं और ये असलियत है। सर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं, सोशली बैकवर्ड। सर ऐसा है, आप गांव देहात में जाएंगे सर, जी जी जी, तो सर वो एनीवे दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन whether economically backward or socially backward, because economically backward will not be entitled to reservation under OBC. उनको इकोनॉमिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने EWS का 10% दिया है, they'll be entitled to that. मेरी बात आप समझे नहीं, मेरी बात राजीव जी, ये आंदोलन क्यों जन्म ले रहे हैं, मेरी बात को समझिए। लोगों को खेतों में पानी नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी गांव में फैली हुई है, क्योंकि उनको अपने फार्मिंग से जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण हमारे मराठी युवाओं में we'll discuss that some other time sir, because we really run out of time. But जो शरद पवार जी के बारे में आपने कहा, we will record it and we will keep it. And we'll call you पंडित गणेश खानकर जी, because आपका predictions बहुत सारा सही होने लगा। पंडित नहीं, ज्योतिषाचार्य गणेश खानकर। आज के बाद नाम गणेश खानकर जी का जरा चेंज होगा, ज्योतिषाचार्य गणेश खानकर। And I hope to see him, if not in parliament, at least in the assembly this time. I wish to see him in parliament, very frankly speaking. Thank you so much, sir. Namaskar. Jai Siya Ram. Har Har Mahadev. जय सिया राम, हर हर महादेव। Thank you, sir. Thank you very much. माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Thank you, sir. You know, most BJP spokespersons feel very strongly and passionately about Mr. Sharad Pawar. Somehow or the other. At the moment with us from the Aam Aadmi Party, we have Mr. Sandeep Katke, our old friend, Advocate Sandeep Katke. He's been waiting for some time. I must apologize to him. Sandeep Katke साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार। How are you, sir? How are you, sir? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। सर तो अडानी जी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को लेकर के वो भी शुरू हो गया। यस, इलेक्शन के मीटर के ऊपर, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर शुरू हुआ है। जितनी भी अदानी को जमीन दी है, हमने अभी परसों मुंबई बचाओ समिति बनाई है। उस समिति में मुलुंड के लोग हैं, विक्रोली के लोग हैं, कुर्ला के मदर डेयरी के लोग हैं, साइन हॉस्पिटल के जो बचाव समिति वहां के लोग हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के लोग हैं, एयरपोर्ट के स्लम के लोग हैं। तो जितने पीड़ित लोग हैं, जहाँ जिनकी जमीन जो है सरकारी जमीन,
वो बीजेपी ने अपने फेवरेट बिल्डर्स को दी है। तो वहां के सभी लोग जो है वो इकट्ठा कर उन्होंने मुंबई बचाओ समिति बनाई है, क्योंकि जी। मुंबई को अगर बचाना है तो मुंबई की जो सरकारी जमीन है उसको बचाना पड़ेगा, मुंबई के स्वास्थ्य को बचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परसों आपने देखा होगा, कल ही मेरे ख्याल से वडेट्टीवार जी ने भी ये मुद्दा उठाया कि अदानी को जो जमीनें दी गई 1253 एकड़ जमीन जो है अब तक अदानी को धारावी के नाम पर दी जा रही है। जी। इसमें मुलुंड से लेके मुलुंड, विक्रोली, फिर कांजूर मार्ग, फिर गोंडी का मानपुर का डंपिंग यार्ड, फिर कुर्ला का मदर डेयरी, धारावी की रेलवे की जमीन, बीकेसी की जमीन, ऐसे काफी जमीन जो है 1253 एकड़ पूरी जमीन जो है अदानी को दी जा रही है। तो सरकार जाते जाते ये भयानक लूट जो है मुंबई करों की कर रही है, और हमने इसी के खिलाफ एक मुंबई बचाओ समिति की स्थापना की है। कल हम लेटर भेजने वाले हैं सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, विधान परिषद, विधानसभा दोनों को, और हम सर चाहेंगे तो कि वो मुंबई बचाओ समिति में कौन कौन है सर, जरा बताएं प्लीज। मुंबई बचाओ समिति में मुलुंड की लोग हैं। मुलुंड में 7,500 पीएपी का प्रोजेक्ट लाया है। उसके बाद में मुलुंड की डंपिंग यार्ड की जगह, ऑक्ट्रा नाके की जगह धारावी वालों के लिए देने के लिए जो जीआर निकाला, उसके खिलाफ मुलुंड वासी इकट्ठा है। फिर उसके बाद में विक्रोली विकास मंच है, वहां के लोग इकट्ठा है। विक्रोली का जो सॉल्ट पैन की जो जगह है वो दी जा रही है अदानी जी को। फिर उसके बाद में कुर्ला की मदर डेयरी की जगह जो है वो अदानी जी को दी है। तो उनकी उधर एक लोक चलवल नाम की एक मूवमेंट शुरू है, जहाँ पे कुर्ला के स्थानिक लोग साथ में आए हैं, तो वो इसमें जुड़े हैं। फिर साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति जुड़ी है। साइन हॉस्पिटल की 10 एकड़ की जमीन जो है वो लोधा बिल्डर को दी गई, तो वो लोग जुड़े हैं। फिर धारावी बचाओ आंदोलन के सभी लोग हैं। तो इस प्रकार से मुंबई में जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो जिनकी जमीनें जो है वो अदानी या लोधा को दी जा रही है, तो ऐसे सभी लोग इकट्ठा कर सब लोग ने मिलकर मुंबई बचाओ समिति की स्थापना की। सर यहाँ पर ये चीज बताएं संदीप पाटके साहब, अब ये भी क्या हुआ है कि मतलब ऐसे हो गया कि जैसे मस्ती हो रही हो, मतलब हंसी मजाक हो रहा हो, और हंसी मजाक में मोबाइल के रेट्स बढ़ गए, न जाने मतलब बिजली के रेट्स बढ़ गए, जमीनें उठा उठा के ऐसे परोस दी गई जैसे मिठाई बांट रहे हो। ये हो क्या रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग? यही सब पूरी जो लूट है, ये सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार आखिरी सांसें गिन रही है। तो उनकी आखिरी सांसें गिनने के समय पे जितने लूट सकते हैं तो सब लूट चालू है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी जितने भी कंज्यूमर है मोबाइल के, वो सब व्यस्त, मतलब त्रस्त हो गए हैं। मैं आज खुद गया था, मुझे मेरे ड्राइवर के लिए सिम लेना था, तो देखा तो 350 रुपए अभी रिचार्ज प्रीपेड चल रहा है। यानी जो गरीब जनता है वो पहले ही महंगाई से पीड़ित है, और उसमें ये सब चीजें होने की वजह से, जैसे ये ट्राई ने भी उनको दिया है अप्रूवल, ऐसे काफी चीजें हैं जिसके ऊपर से ऑलरेडी सब पब्लिक जो है एकदम त्रस्त है। काटके साहब, यही आप बार बार देख रहे हैं कि मोनोपोली इंडिया अलायंस के विजय वडेट्टीवार यही हाईलाइट किया कि पूरे महाराष्ट्र, मुंबई आपने ये मोनोपोली ऑफ अडानी अंबानी हो गए। एयरपोर्ट लैंड के पूरे जगह, राइट फ्रॉम अंधेरी, विले पार्ले, सेंटा क्रूज, कुर्ला, साकिनाका, ये पूरा एरिया अडानी को दे दिए। अडानी ले लिया पूरे एयरपोर्ट रिडेवलपमेंट। दूसरा, आप जो लगातार लड़ रहे थे धारावी रिडेवलपमेंट, वो पूरे धारावी रिडेवलपमेंट, आगे जाके मुलुंड का डंपिंग यार्ड भी ले लिया। तो कहां से कहां? और तीसरा, अभी विजय वडेट्टीवार ने कहा कि डायरी डेवलपमेंट, ये 20,000 करोड़ के जगह वो भी अडानी को दे दिए। वो भी तो ये पूरे मुंबई एक्चुअली चला गया अडानी जी को, और यही बगल में हमारे शादी हो रहा है और पूरे बीकेसी बंद है। यानी इतना एक्स्ट्रावेगेंस, ये लोग देख देख के परेशान हो चुका है कि यहाँ आम आदमी के लिए कुछ है कि नहीं। झोपड़ी उद्ध्वस्त कर रहे हैं विदाउट कट ऑफ डेट। आप गरीबों को बाहर करने के 2011 क्या आपने, तो ये सब आपने, तो ये क्या, ये इनजस्टिस और इनइक्वालिटी पूरा देश देख रहा है, पूरे महाराष्ट्र देख रहे हैं, मुंबई देख रहा है। ये बहुत इफेक्ट होने वाला आगे जाके। हाउ डू यू सी दैट काटके साहब? ये पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। सत्ता जो है, सत्ता सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। तो ये पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म ही चल रहा है पूरे भारत में। क्योंकि भारत में जैसे हमने देखा बीजेपी की सत्ता ही, तो बीजेपी के जितने भी फेवरेट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कि अदानी है, तो उनके ऊपर जो खैरात बरसा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शिंदे गवर्नमेंट तो कठपुतली है। शिंदे गवर्नमेंट कोई चीज का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे गवर्नमेंट को सिर्फ साइन करना है। ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस अमित शाह देंगे, मोदी जी देंगे, तो शिंदे गवर्नमेंट को सिर्फ सिग्नेचर करना है। और ये
क्योंकि अभी महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए 2 महीने ही बचे हैं और 1 डेढ़ महीने के बाद में पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये सरकार जो है जाने वाली है। तब तक जितनी लूट मचा सकते हो उतनी लूट मचा रहे हैं। जैसे हमने अदानी अंबानी जी की शादी भी देखी होगी, तो इतना मतलब एक्स्ट्रा वैगेंजा खर्चा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर के बलबूते पे वो कर रहे हैं, यानी जियो पहला अपने सबको फ्री में सिम बांटे, फ्री में डेटा बांटा और आप इस प्रकार की लूट जो है वो कर रहे हो कंज्यूमर की, तो इसके वजह से सब लोग पीड़ित है। इसके लिए पूरा पूरा ये क्रोनी कैपिटलिज्म का ही राज जो है वो पूरे संदीप देश में पाटिल साहब, ज्यादातर क्या होता है, मतलब TRAI जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अलाउ करती है आपको रेट्स इंक्रीज करने के लिए अगर आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, नए इक्विपमेंट में कोई नई इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब आपके कुछ पैसे खर्च हुए हैं, तो जाकर के TRAI आपको अलाउ करती है रेट हाइक। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और सीधा उन्होंने 12.5%, 13%, 14% अलाउ कर दिया सबको। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर काटके साहब? मैं यही बताऊंगा कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके जो खर्चे हैं, इनके शादी में जितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से वसूल होंगे? तो गरीबों के जेब से वसूल होंगे। तो इसके लिए जितनी भी सरकारी यंत्रणा है वो सब इनके लिए काम कर रही है। पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। और अभी आप बिजली के दाम देखिए, उसके बाद में ये स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। स्मार्ट मीटर के लिए 13,500 रुपए जो है वो खर्चा हो रहा है। अगर आपको आपका प्रीपेड से पोस्टपेड करना है तो उसमें आपका सहमति जरूरत है, लेकिन स्मार्ट मीटर में आपकी कोई सहमति जरूरी नहीं है। ये मतलब सीधा सीधा आपके ऊपर ये थोपा जा रहा है। तो ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था और किस प्रकार से ये जो लूट चल रही है, इसको किस प्रकार से रोकना है? क्योंकि सरकार ही खुद इस सब चीजों में भ्रष्ट है और सरकार ही ये सब चीजों में लिप्त है। जब सरकार ही इन लोगों के लिए काम कर रही है तो आम जनता किसकी तरफ देखेगी? काटके साहब, एक तरफ जो डुअलिटीज है पूरे सिस्टम में, एक तरफ जो लाडकी बहन स्कीम के लिए लाइन बाय लाइन पूरे हर जिले, हर तालुका में महिलाओं का लाइन लगा हुआ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरे। धक्का मुक्की चल रहा है, भीड़ चल रहा है वो फॉर्म एप्लीकेशन के लिए कि हमको 1500 रुपया मिले हर महीना। तो ये आलम है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से मुंबई हम लोग देख रहे हैं, एक ड्युअलिटी, एक जो गरीब और अमीर के बीच एक बड़ा फासला है, वो इसी स्कीम से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ है फॉर्म के लिए झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रहा है, फॉर्म के लिए लाइन धक्का मुक्की चल रहा है, और एक तरफ है कि पूरे मुंबई रीडेवलपमेंट, अमीरों के शादी, पूरे BKC बंद, अडानी को पूरे मुंबई डेवलपमेंट दे रहे हैं। तो ये कैसे डुअलिटीज आप देख रहे हैं? बिकॉज आप जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच में रहने वाले, ये गरीब कैसे इस चीज को देख रहे हैं? कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं बजाज साहब, हम लोग की फ्रेंच रेवोल्यूशन कि हम ब्रेड के लिए मांग रहे तो फेंक के बोलते केक खाओ, तो क्या ये रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? काटके साहब देखिए, ये तो लाडली बहन योजना जो है वो सिर्फ एक गिमिक है। अजीत पवार जी ने इसका इनोग्रेशन किया लाडली बहन योजना का, लेकिन उन्होंने उनकी खुद की बहन के साथ में क्या व्यवहार किए पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन में उनके बहन के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन में उतारा, करोड़ों रुपए खर्च किए और अपने बहन को हराने के लिए जो हो सके वो सब प्रयास किए। और अब ये महाराष्ट्र के लिए एक लाडली बहन योजना आ रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे है और उनको पता है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में इनका जो अलायंस है वो बुरी तरह से हारने वाला है। लगभग 200 के ऊपर सीटें जो है वो MUO को मिलने वाली है। तो इसके लिए बौखला गए और इसी बौखलाहट में क्या करें, क्योंकि महिलाओं के पूरे वोट जो है वो किस प्रकार से अपनी तरफ खींचे, वो सिर्फ एक आभास निर्माण करने के लिए और एक लालच देने के लिए इन्होंने लाडली बहन योजना जो है इलेक्शन के 2 महीने पहले लागू किया, ऐसा मुझे लगता है। ये मोदी जी ने खुलेआम कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में है, भ्रष्टाचार में है, क्लासरूम घोटाले में है, पानी घोटाले में है। शिकायत करने वाला सबसे पहले कांग्रेस था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जब मोदी जी ने एक्शन लिया और जो इन्वॉल्व नेता थे उनको जेल में डाल दिया, तो कांग्रेस इज ब्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर मिसयूजिंग द सेंट्रल एजेंसीज। काटके साहब, तो ये पूरे गिना दिया आप कौन कौन से घोटाले में इन्वॉल्व है मोदी जी? देखिए, सरकार भी उनकी है, सरकारी एजेंसियां भी उनकी है। हमने देखा होगा पिछले समय में जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए वो सब विपक्षी नेताओं के ऊपर किए गए। अगर कोई विपक्षी नेता के ऊपर आरोप होते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, साफ हो जाता है।
तो वही प्रयास अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हो रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, वो बीजेपी के साथ में, बीजेपी के भ्रष्टाचार के साथ में जाना नहीं चाहते। तो जब बीजेपी को पता चला कि अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में नहीं आ रहे, तो इसको खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जितने झूठे केसेस डाल सकते हैं, जितने ये यंत्रणाओं का मिसयूज कर सकते हैं, वो सब बीजेपी ने किया। और उसी वजह से पूरे भारत में जो हमने देखा, लोकसभा इलेक्शन में 400 पार के नारे लगाने वाले 240 पर अटक गए। और आने वाले समय में इन्होंने जो नैरेटिव तैयार किया था पूरे मीडिया में, पूरे पब्लिक में, कि हम 400 पार करने वाले हैं, और वो नैरेटिव के तहत उनको 240 सीट मिली। अगर ये इलेक्शन फेयर और फ्री होता, अगर विपक्षी के सब नेताओं को अंदर नहीं डाला जाता, कांग्रेस के अकाउंट सील नहीं किए जाते, और विरोधी पक्ष के जितने लीडर्स लोग हैं उनके ऊपर दबाव नहीं होता, कोई किस प्रकार का दबाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी 180 या 170 भी पार कर पाती। और यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है सर। मैं दो सवाल आपसे पूछता हूँ। पहले तो अनिल, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि राउज एवेन्यू कोर्ट उनको बेल दे देता है, और ये पहली बार मैंने सुना है, बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग द कोर्ट्स टू। आई एम श्योर यू वुड हैव आल्सो बीन सरप्राइज्ड, आपको भी ये बड़ी हैरानगी हुई होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट इसके पहले कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, वो पीएमएलए का जो स्पेशल कोर्ट है, इसके पहले कि उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर अपलोड भी हो, उसके पहले ही कोर्ट उसको स्टे कर देता है। ये क्या है सर? मतलब कुछ मिसयूज ऑफ पावर्स है। बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, हम सबको पता है। और एक जज ने अगर डिस्क्रिशनरी पावर में उसको अगर लगता है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस जो मेड आउट नहीं होता है, अगर वो बेल देता है, तो उसकी ऑर्डर अपलोड होने के पहले ही सुपीरियर कोर्ट जो है वो किस प्रकार से इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि बेल के प्रोविजन में बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। जज को अगर लगता है कि भाई इसकी कस्टडी की जरूरत है, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, तो ही उसको अंदर रखा जाएगा। अदरवाइज उनको अगर बेल देकर स्ट्रिक्ट कंडीशन डालकर उनको रिलीज किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इन सभी यंत्रणों का मिसयूज किया गया है, ईडी ने, सीबीआई ने जिस प्रकार से झूठे हलफनामे डाले, झूठे पेपर्स कोर्ट के सामने डाले, जब कोर्ट ने उनको एक्सपोज किया और अरविंद जी को बेल दे दिया, तो वो बोखलाहट में सुपीरियर कोर्ट जो है उनको इस मामले में इंटरवेन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ दबाव के तहत ही सुपीरियर कोर्ट ने इंटरवेन किया और उनको फिर से उनका बेल का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर स्टे करके उनको फिर से कस्टडी में रखा गया है। और उसके बाद सीबीआई का केस डाल दिया। पानी का पानी होने वाला है, लेकिन अपने विरोधियों को किस प्रकार से प्रताड़ित करना है, किस प्रकार से उनको उनके ऊपर बल का उपयोग करना है, किस प्रकार से उनको मेंटली डिस्टर्ब करना है, ये सभी चीजें जो है वो बीजेपी करती है और बीजेपी की यंत्रणा करती है। पूरा देश तो ये देख रहा है। और उसके ऊपर सीबीआई का केस, मतलब अरविंद केजरीवाल जी देश के इतने बड़े भ्रष्ट आदमी है, ये साबित करने के लिए किस प्रकार से यंत्रणा का मिसयूज किया जाता है ये हमने देखा है। और संदीप पाटके साहब, अरविंद केजरीवाल जी जेल में, मनीष सिसोदिया जी जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल में, और अरविंद केजरीवाल जी के पीएस विभव कुमार, जिनके खिलाफ महज एक्यूजेशन है कि उन्होंने किसी महिला को थप्पड़ मारा, ये कहा गया है, वो अभी तक जेल में है। और यहां पर जो लोग जो हैं लोगों को मार देते हैं, गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, उनको बेल मिल जाती है। सर कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए है। सत्ता पक्ष के साथ में अगर आप हो, आप खून करो, आप भ्रष्टाचार करो, आप डाका डालो, आप लूट मचाओ, आप बलात्कार करो। हमने देखा होगा कितने बलात्कारी लोग जो थे वो बीजेपी के साथ में आए, फिर उनके बाद में उनके ऊपर समरी रिपोर्ट पुलिस ने फाइल किया। पुलिस ने केसेस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। उल्टा जो महिलाओं ने ये बलात्कारियों के ऊपर केसेस डाले थे उनके ऊपर पुलिस ने दबाव डाल के कि भाई तुम एक्सटॉर्शन कर रहे हो, इस प्रकार के एक्सटॉर्शन के मामले उनके खिलाफ दर्ज किए। तो ये जो सत्ता का जो अहंकार है ये पूरा बीजेपी के लोगों में और बीजेपी के सभी जो सिस्टम है उसमें पूरा घुसा पड़ा है। और कैसे भी करके विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्ष के लोगों को तकलीफ देने के लिए जो चीजें यूज कर सकते हैं, और वही सब हथकंडे जो है वो बीजेपी यूज करते आ रही है। हमने मुंबई में भी देखा होगा जिस प्रकार से यशवंत यादव हो या रविंद्र वायकर हो। रविंद्र वायकर तो खुद अपने मुंह से वो तो मीडिया में बोलते थे कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर मैं बीजेपी या सिंडिकेट ज्वाइन नहीं करता तो मेरा बीवी, मेरा पूरा परिवार जेल में होता। तो सीधी सीधी बात है, यंत्रणों का उपयोग जो है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर करना और
अगर आपके पक्ष का नेता अगर किसी को गाड़ी से कुचल के भी मार देता है तो उसको सपोर्ट करना, ये अभी का जो सरकार है, इस सरकार का काम अभी का हो गया है। काटके साहब, शरद पवार कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। पहले 155 एक महीने पहले बोला कि हम 155 सीट्स लेके आएंगे, मगर आज शरद पवार जी बोल रहे हैं हम 225 सीट्स लेके आएंगे एमवीए। ये सुपर कॉन्फिडेंस कहां से आया है? क्या आपको लग रहा है कि जो क्लेम्स एक ना शिंदे कर रहा है कि मैं पूरे महाराष्ट्र को डेवलपमेंट के राह पर लेके चला हूं, देखो जो पोर्ट कर रहा है पालघर में 1 करोड़ के ऊपर इमीडिएट नौकरी सबको मिलेंगे, जो हाईवे शक्तिपीठ हाईवे जोड़ रहे हैं, समृद्धि हाईवे हमने महामार्ग हमने, तो पूरे महाराष्ट्र को तो क्या ये डेवलपमेंट प्रोपेगेंडा जो महायुति कर रहा है, किसी को विश्वास नहीं है? क्या शरद पवार जी को ऐसे लग रहा है कि ये टोटल फेलियर है, इसलिए 155 से अभी कह रहे हैं कि एमवीए विल गेट 225 सीट्स? काटके साहब, व्हाई यू सी द चेंज नाउ? एक महीने में इतना बड़ा चेंज? देखिए, शरद पवार जो है वो पूरे महाराष्ट्र की नस जानने वाले नेता है। उनका जितना तजुर्बा है उतनी हम लोगों की उम्र भी नहीं है। उन्होंने तभी से राजनीति शुरू की है और तब से मतलब शरद पवार जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी का दाव बीजेपी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। महाराष्ट्र में हमने देखा लोकसभा का इलेक्शन, उस समय जिस समय में मोदी का करिश्मा है, मोदी देश के पीएम है, स्टेट में आपके सीएम है, आपके पास 200 के ऊपर एमएलए साथ में है, एमएलसी साथ में है, पूरा लीडरशिप आपके साथ में है, सेंट्रल एजेंसियां साथ में है, फिर भी आपकी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कड़ी हार हुई है, तो इससे जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो बीजेपी और शिंदेगढ़ से खुश नहीं है, अजित पवार से। महाराष्ट्र की जनता भी जो है वो बीजेपी के ऊपर बड़े गुस्से में है, और ये गुस्सा जो है आने वाले विधानसभा इलेक्शन में निकलने वाला है और दिखने वाला है। तो शरद पवार जी अगर कहते हैं कि 225 के पार अगर एमवीए जाता है, तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, क्योंकि इस प्रकार का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो कॉम्बिनेशन ये बैठा है एमवीए का और इंडिया गठबंधन का, ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए बहुत घातक है, और बीजेपी की और शिंदेगढ़ की बड़ी कड़ी हार होने वाली है। जितने गद्दार शिंदेगढ़ के साथ में गए हैं वो सभी लोग जो है अभी पूरी भ्रमित अवस्था में है। जितने लोग राष्ट्रवादी के अजित पवार के साथ में गए वो पूरे भ्रमित अवस्था में है। आपने देखा होगा कि 21 नगर सेवक, पीसीएमसी के 21 नगर सेवक जो है वो शरद पवार के साथ में आए। काफी एमएलए जो है वो उद्धव साहब से अप्रोच कर रहे हैं कि हमको भी साथ में ले लो, लेकिन उद्धव साहब ने क्लियर कर दिया है कि गद्दारों को माफी नहीं और कोई गद्दार को हम साथ में लेंगे नहीं। तो जहां गद्दारी हुई है वहां पे एमएलए जो शिंदेगढ़ के साथ में गए वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार हुआ है, और वहां पे सामान्य लोग जो है वो आने वाले समय में आपको विधानसभा में दिखेंगे। तो संदीप काटके साहब, चलते चलते उम्मीद यही करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, शैलेंद्र जैन जी को बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। Well, I hope these people come out because I think this is exactly we call a totalitarian state, where we sign that we find the opposition leaders on any pretext being put inside jails मतलब for unreasonable long time without a proper reason. जो भी आपके विरोध में उसको उठा करके जेल में डाल दो, और फिर कोर्ट जो है एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट करता रहेगा, तो 2-2 3 साल आप जेल में पड़े रहिए। मतलब ये क्या हुआ यार? दिस इज अनडेमोक्रेटिक। ये तो अजीबोगरीब मसला है। एनीवे, एट द मोमेंट विद अस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, भरत सिंह साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सर? जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। आप बताइए कैसे हैं आप? तो सर, हम चुनाव के बाद पहली बार मिल रहे हैं, चुनाव के नतीजों के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो चुनाव के जो नतीजे आए, परिणाम जो आए महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से, वो तो बहुत अच्छे आए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो असेंबली में चुनाव होंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं स्पेशली महाराष्ट्र में, उस विषय में आप क्या कहेंगे भरत सिंह जी? देखिए, लोकसभा के चुनाव का नतीजा तो पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, और आने वाले विधानसभा में 2 महीने के बाद में ये भी विधानसभा का नतीजा जो है वो भी पूरा महाराष्ट्र देखेगा। महाविकास आघाड़ी हमारी जो
तीनों पार्टियों का युति है वो सरकार बना रही है और बहुत ही अच्छे मेजोरिटी से बना रही है। भरत सिंह जी, मगर शरद पवार जी ने भले अपना टैली आगे बढ़ाया, पहले बोले 155, अब शरद पवार कह रहे हैं कि 225 सीट्स एमवीए जीत पाएगा। मगर जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे, कांग्रेस काम कर रहे, आपने पूरे 288 सीट्स में एप्लीकेशन मांगा कांग्रेस के एस्पिरेंट से, आप तो ऐसे लग रहा है कि पूरे 288 सीट्स में तैयारी कर रहे हैं लड़ाई लड़ने का, तो युति का क्या होगा एमवीए? देखिए क्या होता है ना, चुनाव में जब हम जाते हैं तो सभी कार्यकर्ता नेता चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस हिसाब से जो एक रणनीति बनी है कि 288 सीटों पे हम अपनी तैयारी तो रखें ना। तैयारी रखना क्या गलत है क्या? कांग्रेस पार्टी तैयारी रख रही है। अब उसके बाद दिल्ली और जो है हमारे बड़े नेता जो महाराष्ट्र से हैं, नाना पटोले जी हो गए, चाहे वो बाला साहब थोरात हो गए, चाहे नसीम खान जी हो गए, हमारे विजय वड़ट्टीवार जी, ये सब बैठ के फैसला लेंगे कौन सी सीट किसको चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। सब सारा रणनीति के तहत शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी हैं, सब बैठ के वो सब बात होगी। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि हम लोग चुनाव तो मिलके ही लड़ेंगे। मगर जिस प्रकार से स्टेट में महायुति का काम चल रहा है, बिकॉज महायुति के जबरदस्त, जैसे शिंदे साहब का कहना है कि हमने डेवलपमेंट के पाथ पर महाराष्ट्र को लेके चले, समृद्धि महामार्ग से लेके शक्तिपीठ महामार्ग से लेके पालघर में सबसे बड़ा पोर्ट इस देश का, और पूरे दुनिया में नंबर 1 से 10 के अंदर आता है पोर्ट, 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट होगा, और डेवलपमेंट के पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त वातावरण बना के रखा है महायुति ने। तो उनका कहना है कि हम बहुत बुलिश है, लोगों के काम किए हैं, जीतना 100% आसान है, और जिस प्रकार से चल रहा है 200 के ऊपर, तो ये एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस और अजित पवार का जो क्लेम है कि सवाल ही नहीं उठता महायुति इज गोइंग टू बी रिपीट, कैसे देखते हो आप? क्या डेवलपमेंट के लहर है, गरीब खुश है, वो लेक लाट जो बहिन स्कीम है वो इतना हिट है कि हर असेंबली में तूफानी गर्दी हो गया उस एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। लाडली बहिना, इतना जबरदस्त स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, उनका कहना है एकनाथ शिंदे जी का। भरत सिंह जी, देखिए नाम्बियार जी, आप कह रहे हैं कि महायुति एक जबरदस्त मुकाम पे है और उनको बहुत अच्छी सीटें आएंगी, ऐसे दावा उन तो लोकसभा के पहले भी करते हैं। मैं इतना आपसे बता दूं कि जितने भी उन्होंने काम किया, आपने समृद्धि का कहा, आपने जो है कोस्टल रोड का कहा, आपने जो है अटल सेतु का कहा, तो कुछ दिन पहले ही अटल सेतु में एक दरार आई थी, जिस तरह से भाजपा और अजित पवार के बीच में एक दरार आई है, उसी तरह से आज जो है समृद्धि महामार्ग पे एक दरार आई है, जिस तरह से शिंदे और अजित पवार में दरार आई है। तो जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से दरारें आते जा रही हैं, उसी तरह से ये महायुति की ये तीनों, चाहे वो भाजपा हो, शिंदे हो या अजित पवार है, ये तीनों लोगों में दरारें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक रोड पे दरार बढ़ रही है और दूसरा, और अब जो है ये महायुति में दरार पड़ रही है। तो ये दरार को जो है ना, ये भर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो युति है, हम लोग जो मिल के लड़ रहे हैं महाविकास आघाड़ी, उसमें कोई दरार नहीं है। उसमें जो है एक भाईचारा है, एक प्रेम है। इनमें इन लोगों के जैसा हम काम नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, पता नहीं कौन सी पार्टी इनकी कौन कब दगा दे जाए, कौन सा विधायक दगा दे जाए, कौन सा सांसद दगा दे जाए, ये इनकी हालात है। और लोकसभा का तो देख ही लिया था ना, 400 सीट की बात करने वाले, 40 नहीं 45 सीट की महाराष्ट्र में बात करने वाले, आज उनका हालत क्या आ गया? मुंह बातें छुपाना चाहते हैं, लेकिन मुंह छुपा नहीं पा रहे हैं। तो हम ही कहेंगे ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। तो भरत सिंह जी, अब ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं राहुल गांधी जी। पिछले 10 साल से तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन था नहीं, अब आधिकारिक तौर पे वो नेता विपक्ष हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार वो अभी मणिपुर गए, हाथरस गए, रायबरेली गए और अभी गुजरात गए, भारतीय जनता पार्टी बहुत तिलमिला गई है उसको लेकर के, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं जान करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। भरत सिंह जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि राहुल गांधी जी आग लगा रहे हैं तो शायद वो गलत कह रही है, और शायद पूरा देश समझ रहा है। जो भाजपा ने आग लगाई थी उसको राहुल गांधी जी जाके बुझाने का काम कर रहे हैं, उस पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। जख्म दिया है भाजपा ने तो हम कम से कम मोहब्बत की दुकान में मलहम तो लगा ही सकते हैं। और संसद से लेके सड़क तक अगर कोई काम करता है किस तरह से करना चाहिए, तो आपको ये दिखता होगा राजीव भाई कि किस तरह से राहुल जी संसद में भी गरजते हैं और उसके बाद जी। सड़क पे आके लोगों को मरहम भी लगाते हैं, उनके सुख दुख को भी सुनते हैं। हर विभाग में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर की बात करें, वो जो है छोटे मझोले अगर कारीगर हैं उनके पास भी जाते हैं, अगर कोई सड़क पे रेडी वाला है उनके पास भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी देखिए सिर्फ विदेश का दौरा करते हैं, 8,000 करोड़ के फ्लाइट में 8,000 करोड़ की फ्लाइट में बैठ के चलते हैं, 10,000 का जो है सूट पहनते हैं, 5 लाख का जो है चश्मा पहनते हैं। तो ये सब बड़े लोग हैं। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी जी, वो सब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है और हम जनता की सेवा के लिए है। ये सिर्फ अपना सेवा अदानी अंबानी का सेवा करते हैं, लेकिन हम जनता की सेवा करते हैं। भरत सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है बार बार, और इसी चीज को दोहराया भी जा रहा है मीडिया द्वारा, कि राहुल गांधी जी ने हर हिंदू को हिंसक कहा लोकसभा में, और अग्निवीर के ऊपर उन्होंने झूठ बोला। इसके बावजूद कि सामने से बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण आया है, फिर भी यही चीज दोहराई जा रही है। सर बताएं। देखिए, झूठ फैलाना भाजपा के नेताओं का काम है। राहुल जी का कमाल देखिए कि पिछले 10 सालों में प्रदेश के प्रधानमंत्री एक बार भी संसद में जवाब देने के लिए नहीं उठे थे। पूरा संसद उनसे कहता था जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन क्या कमाल राहुल जी ने किया, पहले ही भाषण में 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री को उठ के बोलना पड़ रहा है। उनके सारे मंत्रियों को जो है सफाई देनी पड़ रही है। तो इससे समझिए कि भाजपा और देश के प्रधानमंत्री राहुल जी के वार से कितना तिलमिलाए हुए हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो राहुल जी इतना एग्रेसिव होके बोल रहे हैं उसका जवाब क्या दें। क्यों एग्रेसिव हुए? उन्होंने एग्रेसिव नहीं कुछ ऐसा कहा है, उन्होंने सिर्फ देश की समस्या देश के प्रधानमंत्री के सामने रखा है कि जो झूठ आप बोलते थे उसका जो है अब हम पर्दाफाश कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से कितनी मजबूत आज जो है विपक्ष है। और ये देश का बहुत लोकतंत्र, इसे कहते हैं जीता जाता जागता लोकतंत्र। अगर देश का लोकतंत्र इस तरह से चलेगा तभी जाके देश में शांति भी रहेगी, देश के लोग खुशहाल भी रहेंगे। क्योंकि देश की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है वो अपोजिशन में बैठ के इनके जो है कहते हैं ना कुकर्मों को हमें जो है पर्दाफाश करना है। देश की जनता का भला करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उठा रही है। 10 साल ट्रेलर था, मोदी जी का कहना कि 10 साल ट्रेलर था, अभी जो पिक्चर बाकी है, ये तीसरा जो टर्म है मोदी 3.0 थर्ड टर्म, 3 गुनी ताकत से मोदी जी काम करेंगे। मोदी जी का कहना है, बोले कि 3 संकल्प मैं लेता हूं ना, यह संकल्प लिया है मोदी जी ने। संकल्प बोले 3 गुना काम करूंगा मैं। तो कैसे देखते हो मोदी जी का संकल्प आप, भरत सिंह जी? देखिए नाम्बियार जी आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं और जानते हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं आप। आपको सारी खबर है, सब खबर आप रखते हैं। वो एक गाना है कि नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। तो आप सबकी खबर रखते हैं। और बता दूं आपको कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला था, झूठ, उसी का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। और अभी जो ये तीसरा टर्म कह रहे हैं ना, इनसे पूछिएगा कभी, अगर कभी मौका मिले आप लोगों को राजीव जी, तो इनसे पूछिएगा कि 1 साल के बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल है कि रहने के लिए रह पाएंगे कि नहीं रह पाएगा। मुझे मुश्किल है कि 1 साल के बाद खुद ब खुद आएंगे आपके चैनल पे, टीवी पे आएंगे और कहेंगे कि देखिए मैंने जो वो एक बनाया था मार्गदर्शन मंडली, उसी मंडली में मैं भी जा रहा हूँ, अब मेरा काम जो था वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो काफ़ी देर से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश बाबू और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, हो सकता है कि शायद वो हाथ खींच लें। कहा जा रहा है, क्या आपको विश्वास है कि ऐसा होगा? लगता देखिए मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, दोनों बाबू हैं, एक चंद्रा बाबू हैं, एक नीतीश बाबू हैं। और बाबुओं का क्या, प्रमोशन मिलते ही बाबू जो है वो चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं।
तो खाली प्रमोशन मिलने की देरी है। जैसे ही इन बाबुओं को प्रमोशन मिलेगा, बाबू एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी, क्योंकि प्रमोशन के बाद तो कुर्सी बढ़ती है ना, उसका जो है बढ़ोतरी होता है। तो इसी तरह से जैसे ही बढ़ोतरी लगेगा दोनों बाबुओं को, बाबू अपने आप जो है बैसाखी अपना निकाल देंगे, सरकार गिर जाएगी। सर यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप क्या बोलेंगे उसके बारे में। बिहार में 17 दिन में 12 पुल गिर गए, 12 पुल, ब्रिजेस 12 बिहार में। आज तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है सर, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और मीडिया भी भूल गया उसके बारे में। 12 पुल सर, 12 ब्रिजेस गिर गए, और कई ब्रिजेस जो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन होना था 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, वो ढह गए, और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, और उस विषय के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भरत सिंह जी, देखिए 12 पुल जो गिरे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नीतीश जी अगर कहते हैं कि सुशासन की मेरी सरकार थी, नीतीश जी ये कहते हैं कि सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है, तो मुझे लगता है नीतीश जी का ये सबसे अच्छा यही काम है, क्योंकि भाजपा उनके साथ है। और वो कहते हैं कि नीतीश बाबू तो बहुत ही शानदार काम बिहार में किए हैं, शानदार डेवलपमेंट किए हैं। तो यही शानदार डेवलपमेंट जो है मुझे लगता है बिहार में दिख रहा है भाजपा और जो है नीतीश जी का। लेकिन बहुत अफसोस है कि देश की जनता का पैसा, उसके बाद में आप सोचिए 12 ब्रिज गिरना कितना बड़ा हादसा है, मगर जिस हादसे को ये लोग मतलब देखना नहीं चाहते हैं, उस पे विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। देश का एक ऐसा स्तंभ है, चौथा मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, उस मीडिया में एक शब्द नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ एक विजुअल दिखा के कि आज यहाँ पे एक पुल गिरा, कल वहां पे एक पुल गिरा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती है, इंडिया गठबंधन में जितने भी जहां भी सरकारें हैं, उस सरकार में अगर पुल का एक खाली पिलर टूट जाता ना, तो हाहाकार मचा देती है मीडिया और कहती कि देखिए ममता जी ने क्या काम किया, देखिए केजरीवाल जी का काम, देखिए जो है कर्नाटक में किस तरह से, ये सारे चीज सुक्खू जी का देखिए। मतलब हद हो गई है मीडिया की भी, चापलूसी की भी, और दूसरा सब ठीक है अपनी जगह पे, मगर जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं ये बहुत ही मैं समझूंगा एक तरह से ये ठीक नहीं है बिहार में, क्योंकि उसी पुल से बहुत लोग आते जाते होंगे। अब ये तो लोग डरते होंगे कि अब किस पुल से जाया जाए और किस पुल से न जाया जाए, क्योंकि बिहार में आप राजीव जी आप जानते होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है कहीं तो बिहार में आता है, इसलिए पुल भी ज्यादा निर्माण कहीं किया गया है तो बिहार में किया गया है। अब लोग भयभीत ये है कि मैं किस पुल से जाऊं, क्या पता वो पुल गिर जाए। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो सर बिफोर प्रदीप जी आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग, उसके पहले एक छोटा सवाल। हाल ही में कांग्रेस ने आज और कल के बीच में एक नई एजिटेशन लॉन्च करी। अडानी जी ने एकदम बिजली के मीटर्स के प्राइसेस जो है वो हाइक कर दिए, और हमारी जो MERC है उन्होंने अलाउ भी कर दिया है कि बिजली की प्राइसेस आप बढ़ा दीजिए, बिजली की कीमत आप बढ़ा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ मोबाइल के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, TRAI ने भी अलाउ कर दिया, ठीक है जी आप भी बढ़ा दीजिए। सर लोग पैसे कहाँ से देंगे? बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मोबाइल का बिल बढ़ जाएगा, लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और शादी देख के खुश हो जाओ आप, शादी हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पूरे बीकेसी बंद हो गए 2-3 दिन के लिए, टीवी में सब देख के खुश हो जाइए पूरे देश। भरत सिंह जी, देखिए राजीव जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि एक घराने में शादी हो रही है और वो घराना जिस हिसाब से पैसा बहा रहा है, मुझे लगता है कि देश की जनता के लिए अगर ये कहीं ना कहीं काम आता था, देश के वो जो पैसे हैं ना, देश की जनता के टैक्स के पैसे हैं, इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े आदमी है, लेकिन कम से कम बड़े आदमी जितने होते हैं बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। ये ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं तो सब देख रहे हैं, और इसका पता भी आपको चलेगा कुछ सालों में, कुछ दिनों के बाद। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा अदानी ने लाइट का बिल बढ़ाया है, जिस तरह से मोबाइल का बिल बढ़ा हुआ है, देखिए जाते जाते यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार सोच रही है कि कितना अपने भाई को मैं फायदा दे दूं। जितना फायदा देना चाहते हैं ये लोग वो दे रहे हैं,
और इसी वजह से देखिए आज हमारा जो है बीकेसी में मोर्चा भी था, हमने मोर्चा भी जो है इसी विषय पे निकाला था, मीटर जो चेंज करने वाले हैं, और दूसरा जिस तरह से लाइट का बिल बेतहाशा बढ़ा है, 3-3 गुना, जिसका 2000 बिल आता था वो 6000 बिल भर रहा है, कैसे भरेगा कौन? मतलब बताइए ना कि मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति क्या करेगा? मतलब ऐसा हो गया कि आपके मुंह में निवाला मुंह तक ला रहे हैं और ये छीन ले रहे हैं, यहाँ तक ये पोजीशन है। और यही ये देखिएगा इसी 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो इसका खामियाज जो है ये महायुति जो है तीनों पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, तीनों लोगों को इसका खामियाज भुगतना पड़ेगा। एक चीज तो है प्रदीप जी, अब कांग्रेस जो है जैसा इन्होंने कहा ना संसद से सड़क तक, अब वो पुरानी कांग्रेस मुझे वापस आती हुई दिख रही है, बिल्कुल जैसे पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी ना। लोगों का एक एक मुद्दा लेकर के जो आप सड़क पर आ रहे हैं, अंदर से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लोग जो है जाग गए हैं। प्रदीप जी, ऐसा लग रहा है, ऐसे चर्चा है पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, आज के विधानसभा इलेक्शन जाने वाले में कांग्रेस टिकट जिसको मिला उसका जीत 100% पक्का है, बिकॉज कुछ करना ही नहीं है, लोग ही अपने आप चुन के दे देंगे। ऐसा एक स्थिति चल रहा है भरत सिंह जी, ये कैसे, ये वातावरण आप तक भी पहुंचा होगा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट है लोकसभा इलेक्शंस में भी देखे, स्पेशली महाराष्ट्र में आप जितने सीट जीते, जितने लड़े, जितने जीते, सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट आपका है। जब भले शरद पवार जी 8 से 10 मिले बट कम लड़े थे। भरत सिंह जी, वातावरण चेंज हो रहा है, कांग्रेस बड़ा एक फिगर बनकर आ रहा है सामने, नाना पाटोले जी, राहुल गांधी जी सेंटर। देखिए महाराष्ट्र हो या देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है, उनको विकल्प के तौर पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सालों तक इस देश को चलाया है, और हम लोग जानते हैं कि देश को किस तरह से चलाना चाहिए, देश की जनता को क्या चाहिए। ये तो क्या नए नए लोग कहते हैं ना कि नए नए लोग आते हैं तो कुछ ज्यादा ही उछलते हैं, तो भाजपा भी वही की और भाजपा के नेता भी वही किए कि भाई हमने सरकार बना ली है, या मोदी जी तो चेहरा है, मोदी जी चेहरा हुआ। क्या हुआ मोदी जी का? बहुत मुश्किल जो है मोदी जी बचते बचते निकले हैं हार के मुंह से, नहीं तो 1.5 लाख तो कोई ज्यादा वोट नहीं होता है, थोड़ा और मेहनत हो जाती थी तो मोदी जी निपट जाते थे। तो ज्यादा बदलाव के मूड में है, पूरा देश बदलाव के मूड में है, और महाराष्ट्र तो पूरे बदलाव के मूड में है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही भावुक जनता है, वो जानती है कि झूठ को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, और ये जो सरकार चला रही है पूरी तरह से झूठे लोग हैं। और आपको घटना बताऊं कि हम लोग सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ते हैं, महाराष्ट्र में हो चाहे मुंबई में हो। अभी मरोल में कल ही मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही एक पांडे करके जौनपुर का एक लड़का था, वो बेचारा जो है माइग्रेंट था, वो काम करने वाला था बिल्डिंग में, एक बिल्डर के पास जो मरोल मेट्रो स्टेशन है उसी के बगल में, वो डेथ हो जाती है, उसको छुपाया गया है पूरी तरह से। कल मैं जाने वाला हूँ और पूरी तैयारी के साथ में जाके, उससे पहले तो मुझे ये पूछना है कि भाई पहले इसे क्यों छुपाया गया। दूसरा, पुलिस स्टेशन ने अभी तक उस बिल्डर के ऊपर FIR क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब लोग सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और सरकार के संरक्षण में जो काम कर रहा है कुछ भी कर देगा, चाहे वो एक्सीडेंट करके मार दे, चाहे वो जो है लड़का कोई अगर कैसे मरा, वहां पे बिल्डिंग में वो काम करता था, उस बिल्डर के पास काम करता था, क्या हुआ ये तक नहीं पता। मतलब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? चाहे आप देखिए ना किस तरह से 2-2, 3-3 जो है एक्सीडेंट जो है कर दिए और उसको हिट। तो ये सब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार, आदित्य ठाकरे, आपका कहना है कि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है तो पूरे यही सब काम चल रहे हैं? सब मिली जुली सरकार है, सब मिली जुली सरकार है नामबिहार जी। इतने दिन हो गए हैं अभी तक FIR नहीं हुआ है। क्यों FIR नहीं हुआ है? क्यों बिल्डिंग के जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है, क्यों नहीं उसका स्टॉपर नोटिस देके काम रोक दिया? जब तक उसका कोई फैसला नहीं होता है तब तक काम रुकना चाहिए, और वो सामने से बिल्डर आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल मैं उस स्थान पे आज मुझे पता चला है, कल जाने वाला हूँ और उस देखता हूँ फिर जैसा भी रहेगा। कौन सा पुलिस स्टेशन है? मरोल बोला, MIDC पुलिस स्टेशन। हाँ। तो RSS, खड़गे साहब का कहना है कि RSS पूरे एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर किया है। RSS एजुकेशन सिस्टम के सब टॉप लेवल पे RSS के लोग तैनात है,
और आरएसएस मनुवादी विचार इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पूरे देश में स्प्रेड करना चाहते हैं। यह खड़गे साहब का बहुत सीरियस चार्ज है भरत सिंह जी। और राज्यसभा में खुलेआम उन्होंने कहा कि आरएसएस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में टेक ओवर किया। क्या यह सच्चाई है भरत सिंह जी? आप अगर एक आरटीआई डाल दें और पता लगाएं, अगर सभी ऑफिसरों के आईएएस आईपीएस जितने हैं अगर देखा तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखेंगे तो सचमुच आपको पता चल जाएगा। जो इल्जाम लगाया बहुत सोच समझ के और पूरे सबूत के साथ में खड़गे जी बोलते हैं, बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, बिना सोचे समझे इस तरह से नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने बयान दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है और ये सच्चाई है। इसमें आप जानते हैं पूरी तरह से कि किस तरह से कौन से ऑफिसर कहाँ पे प्रमोशन दे के कौन कौन उनको बिठा रहा है, किसका वो काम कर रहे हैं, ये सब दिखता है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर मणिपुर, जैसे मोदी जी ने कहा कि हमने करीबन 11,000 एफआईआर वहां पर लॉन्च किए, मणिपुर में 11,000 एफआईआर रजिस्टर कर 500 लोगों को अरेस्ट किए, मणिपुर में काम चल रहे हैं। अमित शाह बार बार चल रहे हैं, होम मिनिस्टर जाके लोगों से मिल रहे हैं, कैसे शांति एक जबरदस्त तरीके से मणिपुर में लाए। बट राहुल गांधी जी का कहना है जब तक मोहब्बत, सम्मान और भाईचारा का संदेश आप मणिपुर में नहीं लेके जाओगे मोदी जी, तब तक मणिपुर आप पीस के उस पटरी पर नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या, ये मोहब्बत, सम्मान, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत के दुकान जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप जब तक इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे मणिपुर में पीस नहीं होगा। भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी का कहना। देखिए, जख्म को अगर भरना है तो उसमें मलहम लगाया जाता है, उसको दवा दी जाती है, उस पर नमक नहीं रगड़ा जाता है, उस पर पेट्रोल नहीं डाला जाता है। भाजपा पिछले 1.5 से 2 साल हो गया, मणिपुर की जो हालात है, भाजपा या देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए बताइए? आज आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके पास समय है, लंदन जाने के लिए आपके समय, यूएस में जाने के लिए समय है। मणिपुर भैया उससे नजदीक है देश के प्रधानमंत्री जी, वो कहीं युगांडा में नहीं है, वो मणिपुर यही है। अगर आप चाहें तो 10 बार जा सकते थे, मगर आप डरते हैं और वो डर कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप वहां जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि मणिपुर की जनता आपको बख्शेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो परेशान है। आप एक मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को आप जो है बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। आप हटा देते, उनको कहते कि भाई ये नकारा मुख्यमंत्री है, ये इन्होंने काम नहीं किया, मैं आ रहा हूं, मैं आपका जो है प्रधानमंत्री हूं, मैं आप मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको चुन के दिया है, उन्होंने भी तो वोट दिया है ना आपको। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मणिपुर वासियों के लिए व्यवहार है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के वासियों की जरा भी चिंता नहीं है। जरा भी चिंता अगर बजाज जी होती तो 10 बार जाते और पूछते क्या हालात है, ये हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, हमारे भारतवासी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि वो पाकिस्तानी है। तो सर, ये नीट एग्जाम के बारे में सरकार का रवैया कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या हो क्या रहा है ये, सर बताएंगे क्या? देखिए, नीट के एग्जाम में जिस तरह से देश के नौजवान युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिस तरह से उनके जीवन को एक तरह से बर्बाद किया गया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से फेल हुए हैं इस विषय पे। मगर थेथरई देखिए, कहते हैं ना कि थेथरई मतलब गलत भी करेंगे लेकिन कहेंगे गलत नहीं हुआ है। ये तो कोर्ट का मतलब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बहुत मान सम्मान से कहता हूं कि भाई उनके वजह से आज जो है कम से कम इनको स्वीकार करना पड़ा, हाँ गलती हुई है। लेकिन क्या हुआ बताइए, आज तक मतलब गलती हुई है, लिपापोती करने में लगे हैं, लेकिन देश के लाखों नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से केस पोस्टपोन हुआ है सर, पोस्टपोन इसलिए हुआ है ना राजीव जी कि जो हमारे भविष्य है उस भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। तो इनके साथ अगर आप, मैं समझता हूं कि इनका सब कुछ, कहते हैं ना कि जमीर मर चुका है। जमीर जिसका मर जाता है ना, तो वो सिर्फ कुर्सी की बात करता है। इनको कुर्सी प्यारी है, बाकी कुछ भी प्यारा नहीं है। तो चलते चलते भरत सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ, हम सब लोगों की उम्मीद ये थी, सभी लोगों की, इनफैक्ट मोहन जी भागवत जी ने भी ये बात कही थी, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आरएसएस के जो सरकारवाह हैं उन्होंने कहा था कि भैया अहंकार छोड़िए। मतलब 63 सीटें कम हो गई, लेकिन रवैया वैसा ही है भरत सिंह जी।
देखिए, जिस तरह से आपने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने बहुत पहले भी कह चुके थे, और कहीं ना कहीं आरएसएस भी बहुत दुखी है, क्योंकि वो आरएसएस को हाईजैक करना चाहते थे मोदी जी, नड्डा जी के द्वारा। नड्डा जी ने कहा कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, जी, कहा। आरएसएस ने बोला ठीक है भाई, मेरी कहा। जरूरत नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। कहा। अब आरएसएस ने काम नहीं किया तो ये नतीजा आया। जी, तो मतलब तो इनके रवैये कहीं- में कोई फर्क नहीं आया अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। मतलब अब ये नहीं, वो नीट के थोड़ा एग्जाम तो- लेकर के तो अच्छा कुछ कैंसिल नहीं, करके वो दो बैसाखी का इंतजार कर रहे हैं ना, वो दो बाबुओं का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों बाबू जो है अपनी बैसाखी निकालें। अब उसके बाद तो फिर हम लोग मानने को तैयार है कि मोदी जी जाते जाते एक चीज तो करके जाएंगे कि मैं जब तक प्रधानमंत्री था तब तक भाजपा को मैंने जिंदा रखा था, अब मैं जा रहा हूं, और भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं। और भाजपा उसी दिन, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म कर देंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा खत्म होगी, लेकिन भाजपा का बहुत बड़ा दुर्दशा कहते हैं ना, ये होने वाला है। और आपको बता दूं कि पूरे देश में भाजपा सिर्फ 63 या 64 सीटें जीती है, 63 या 64, इससे ज्यादा सीट आई नहीं है उनकी। 240 सीट कहाँ है बताइए मुझे, 63 या 64 ऐसा कुछ, 63 या 64 है। उसका वजह बता रहा हूं, कम से कम बाकी जितने नेता है ना, सब आयात किए हुए नेता गए हैं, वो जीते हुए हैं, यानी कांग्रेस से गए हुए हैं वो जीते हैं, सेना से गए हैं वो जीते हुए हैं। ऐसे सारे अगर नेताओं की लिस्ट आप निकाल लें तो जो सिर्फ भाजपा के अपने नेता बचते हैं, जो पुराने नेता हैं, जो कैसे बेचारे को कैसे कैसे टिकट मिल गया, वो सिर्फ 63 काउंटिंग में बैठता है। यानी भाजपा सिर्फ 63 सीट पूरे देश में जीती है, बाकी विपक्ष के लोग ही जीते हैं। और जैसे ही सरकार, जैसे अगर मोदी जी का विदाई सुबह चालू होगा, उसी तरह से बाकी के सब लोग है ना अपना अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। Right, मोदी that's जी, about मगर it. मोदी जी ने कहा विकसित भारत मैं विरासत में छोड़ के ही जाऊंगा, और विकसित भारत बनेगा 2047 में। भरत सिंह जी, उन्होंने कहा कि विकसित भारत की विरासत की बात की, उन्होंने अपने लिए बोला कि जो विकसित मैंने किया था, जितना विकास किया था, वो सारे विकास को लेके जाऊंगा। आपको याद होना चाहिए, शायद याद होगा कि उन्होंने पहले ही 2014 के एक मीटिंग में कह दिया था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो वो लास्ट में यही होने वाला है, वो कहेंगे पूरे भाजपा के नेताओं को, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अब तुम लोग देखो। मैं तो योगी को हराने वाला था और योगी ने इनको हरवा दिया। ये भी एक बड़ा खेल हुआ है उत्तर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने आके, जब केजरीवाल जी बाहर आए जेल से बाहर, तो उन्होंने एक चीज कहा ना कि भाई अब अगला नंबर योगी का है। किसी भाजपा के बड़े नेता ने, किसी प्रवक्ता ने उसका खंडन नहीं किया कि हाँ जो है ये केजरीवाल गलत कह रहे हैं। यानी कि अगला नंबर जो है वो उनका ही था कि किसी तरह से निपटाने देना। वो निपटाने गए थे योगी को, योगी ने निपटा दिया जो है भाजपा को। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सिंह जी नमस्कार, जय हिंद। बहुत दिनों बाद भरत सिंह जी, बहुत दिनों बाद आए आप। बहुत भी चुनाव के समय बहुत बिजी थे तो भाग दौड़ लगी थी। अब फिर 2 महीने के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद। मैं उम्मीद जय करते हैं आपको भी विधानसभा में हम देखेंगे, उम्मीद यही करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। Well, the BJP really and truly will have to wake up. I mean, I find it very strange as to why the Ministry of Education has not filed its affidavit. The government of India has not filed its affidavit as yet in the Supreme Court. I don't know why they've not done it. Why are they playing with the lives of so many people? Each delay is costing people more and more. I mean, there has to be clarity. Are you going to hold exams again? Are you not going to hold exams again? And how will you differentiate? Who are the people who have really passed and who are the people who have passed, with bribery and things like that? So, नीट एग्जाम के ऊपर सरकार का जो रवैया है प्रदीप जी मेरी समझ के बाहर है। आपको समझ में आ रहा है क्या? I think the court has been slightly clear. It's waiting the CBI report, and CBI report says that entire exams are not affected or tarnished. There are only a few places where the leaks have taken place and a few places where things have been influenced or affected. Now, if the CBI gives that particular report, I don't think there's going to be any kind of But the point is, re-examination. if the exam has been suborned, even in one place, then the whole thing has been corrupted. Let's be very clear. I mean, That Supreme Court will really have to take a call on this. that's right.
It's a tough decision. So you really can't say that fine, you know, Jaipur was corrupted or Lucknow was corrupted or Patna was corrupted, but Bengaluru and Chennai and Mumbai were not. So in spite of the fact that some people have been arrested in Mumbai as well, and some people have been arrested in Gujarat. So, I mean, that's a bit of a misnomer. Either the whole thing is above board or nothing is above board. It has to be all or nothing. That at least is my opinion. In any event, that's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा शो देखा और इसी तरह देखते रहें और शो को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। नेशन नाउ को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वो घंटी भी बज गई है, सुन लिया होगा आप लोगों ने। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।